Welcome to Masala Buzz. We bring to you the latest happenings from the world of showbiz. Today's top stories are: We feel that dance should never be on Karan Johar's list. Ranbir Kapoor and Katrina Kaif are off on another vacation. Suzanne Roshan's 100 crore rupees divorce settlement with Hrithik Roshan is false. तेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात थाली में कटोरा लेकर आलू भात मूड़ी भात मेरे भी जो किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का. We have all seen Karan Johar in his oh so many avatars and we like most of them. As a director, he rules, especially after his short film in Bombay Talkies. As a producer, he rocks, with films like Kal Ho Na Ho and Ye Jawani Hai Diwani to his credit. And as an actor, well, he may not be an Aamir Khan, but he works hard, be it in his bit role or a fully fledged character in Bombay Velvet. And from what we hear, he has done a fabulous job as the baddie in this one. But while we are huge fans of the man and are willing to take anything he gives us with a certain indulgent attitude, what we don't want to see is him as a dancer. His friends have always teased him about his performance, and he himself admits that he is not the best on the dance floor. So when we heard that he was doing a minor role in his new production Hussy to Fussy, we had to close our eyes and say a collective prayer. Please God, don't make us watch a sequence of Karan Johar doing a little song and dance. Bollywood actors are all in a holiday mood and more celebs seem to be flying off for a vacation with family and loved ones. While Kareena Kapoor Khan and hubby Saif Ali Khan have headed to Switzerland, their favorite destination, her cousin Ranbir Kapoor is reportedly in New York with his alleged girlfriend Katrina Kaif. Though Kat reserves Christmas time for family, looks like this year she is dished family for her good friend Ranbir. ये आदि क्या भंडाला? अब उस कुत्ते के लिए मुझे खंडाला आना पड़ेगा? कुत्ता? इस बहाने हमारी दोस्ती तो हो गई. तो कब हुई? They were spotted at Mumbai airport leaving for New York. The alleged couple will be back from the US by the second week of January. Apart from Saif, Kareena and Ranbir Kat, Imran Khan and his wife Avantika too are off on a vacation. Our Rajkumar actor Shahid Kapoor too is holidaying in US but sans any lady love. We hope all these actors have a very happy new year. We also hope that Ranbir and Katrina have a good vacation together yet again and manage to stay away from the sneaky paparazzi. ये कौन है? जेनिफर. हाँ. घर से भाग के आई है? चीची, माँ, ये ऐसी लड़की नहीं है. मैं ऐसे भगा के लाया हूँ. Suzanne Roshan was deeply disappointed when she read the article titled Suzanne and Hrithik Roshan Divorce 100 Crore Settlements. She claims there is no element of truth in the news and it is entirely speculative. It is unethical to publish false news and speculate on the private relationships of individuals. तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है. Hrithik announced Suzanne's decision to end their marriage via an official statement on December 13. Both dated for 4 years before finally tying the knot on December 20, 2000. The couple has 2 sons, Rihan and Ridhan. Suzanne says that they still have respect for each other and their focus remains the kids. Hrithik and she have always had the deepest respect for one and another. Their primary focus has and will continue to be their 2 children. She would yet again like to appeal that they are granted their privacy at this critical juncture in their lives. Hi, this is Arjun Rampal. You're
watching Bollywood Masala, so keep watching. सिद्धार्थ एक बहुत ही हंसमुख बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हंसते खेलते कूदते हमने उनको देखा है इतने साल तक। आई थिंक हर किसी की लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जहां उनको सेटल डाउन होना पड़ता है। एंड आई थिंक सिद्धार्थ, इट वॉज हाई टाइम दैट यू गॉट मैरिड। और मैं यही कहूँगी कि इतने वंडरफुल ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारे अच्छे ऐसे पल, उनकी एक हंसमुख अच्छी बहुत अच्छी शादी गुजरने के लिए बहुत सारी दुआएं। आई थिंक समथिंग स्वीट, समथिंग वेरी मेमोरेबल दैट ही कैन यूज़ विद हिज वाइफ। वेडिंग्स पे हमेशा ऐसी गिफ्ट दी जाती है जो याद रखे कि अच्छा ये इन्होंने दी है। एंड इसमें बहुत सारा प्यार, ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। क्योंकि सिद्धार्थ एक ऐसे दोस्त है जो मेरे करियर के बहुत सालों पहले, मतलब जब मैंने करियर शुरू किया था वो मिले थे। वो रेडियो जॉकी रह चुके हैं, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए उनके साथ। तो बहुत ही प्यार भरा ये गिफ्ट उनके लिए है। अब सिद्धार्थ ही सिलेक्ट करे नेहा के लिए कौन सा बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन रहेगा। लेकिन अगर पर्सनली मेरी चॉइस बोले तो इफ़ दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ शॉपिंग दे शुड गो टू दुबई, एंड इफ़ दे जस्ट फॉन्ड ऑफ रिलैक्सिंग दे शुड गो टू सम प्लेस इन इंडिया, बिकॉज हमारा देश भी बहुत खूबसूरत है। या तो नॉर्थ या तो साउथ, दे कैन गो टू केरला। बट सिद्धार्थ ऑब्वियसली वो तो जानते हैं कहाँ जाना है उनको, साउथ में। तो मैं इतना कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन उनकी चॉइस है, वो जहाँ चाहे, एज लॉन्ग एज दे आर हैप्पी टुगेदर। बहुत सारा मैं ऑलरेडी स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ एंड आई थिंक स्क्रिप्ट पे काम करते हुए मुझे टाइम लगेगा, एटलीस्ट 3 से 4 से 5 महीने लग सकते हैं। वो डिसाइड अभी तक ब्रेनस्टॉर्म कर रही हूँ। आई थिंक ये तभी डिसाइड कर सकते हैं जब स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी, क्योंकि यारियाँ में सारे न्यू कमर्स रिक्वायर्ड थे, इसलिए मैंने न्यू स्टारकास्ट कास्ट की। और मैं बहुत खुश हूँ कि यारियाँ हिट हो गई है और जनवरी की एक्चुअली इकलौती हिट है यारियाँ। नहीं, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि जो खाता है वो भी पछताता है, और जो नहीं खाता उसको भी क्रेज़ रहता है कि हम शादी करें और देखें कि क्या होता है शादी। नहीं, आई थिंक हमेशा जो दूर होता है, जो चीज़ जो दूर होती है वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जो जिनकी शादी नहीं हुई होती है उनको लगता है कि शादी करके बेटर है, और जिनकी शादी हो गई होती है उनको लगता है कि शादी से पहले शायद बेटर था। बट आई थिंक इंसान हमेशा खुशी के पीछे भागता है। तो अगर आप खुश रहे किसी भी सिचुएशन में तो आप हमेशा खुश रहेंगे और पछताएंगे नहीं। नो, आई एम नॉट प्रेशर्ड एट ऑल, बिकॉज आई नो कि मैंने इस पिक्चर से बाय गॉड्स ग्रेस यूथ की नर्व्स पकड़ ली थी यारियाँ से, तो काफ़ी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और नर्वसनेस नहीं है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सिंदूर लगाना, बट पता नहीं क्यों इंडियन ट्रेडिशन में ही सिंदूर गायब होता जा रहा है और बहुत कम लोग लगाते हैं। और मैं एज अ वुमेन इनकरेज करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा विमेन, स्पेशली जो इंडस्ट्री में भी हैं और जो मैरिड है, वो सिंदूर लगाएं और सिंदूर को इनकरेजमेंट दें। मुझे तो कलम पे बहुत तरस आ रहा है और उसके अभी लाइफ ख़त्म हो गई है। मैं तो यही कहूँगा कि अब अपनी मर्ज़ी ना चलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। 2014 में भी काफ़ी फिल्में आने वाली हैं, जैसे किक है, माउंटेन मैन है और
धूमकेतु है, हरामखोर है, मानसून शूटआउट है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं है, मैं खुद ही नवाज बन जाऊँ वही बहुत है मेरे पास। मैं तो उनको अपनी पूरी दुआएं और दिल से दुआएं देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी बीवी के साथ पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजारें। उससे अच्छा और उससे अच्छी बातें क्या हो सकती हैं। It's beautiful. I've been married for 4 years now and I wish him a lot of happiness. तो सब यही कहते हैं कि अगर पछताना ही है तो मैं तो सर खा के ही पछता लो। तो हाँ, गिफ्ट लेके आई हैं। मेरी मम्मी पहुंच गई हैं, हम लोग उनके साथ गिफ्ट स्टेज पे जाएंगे और विश करेंगे। और Siddharth has always been full of life, partying, rocking. So I wish his marriage is also like that. Lot of fun and I always wish him all the best. जी हाँ, सिद्धार्थ, मैंने हमेशा सिद्धार्थ को अपना बड़ा भाई माना है। एक बहुत ही लाइव वायर किस्म का इंसान है, और ये थोड़ा डाइजेस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा कि आज उसकी शादी है। और जी हाँ, आज ढेर सारी बधाइयाँ। नहीं, आई पर्सनली फील दैट आप अगर मार्केट में जाएँ थोड़े पैसों के साथ, आप एक मेरे लिए चीज़ खरीद के लेके आए, खुशी, अगर वो मिल जाती है तो मैं ढेर सारे पैसे आपको देता हूँ। अगर यही बैलेंस है और यही आपके क्वेश्चंस हैं, तो आई मस्ट से दैट यू मस्ट गो आउट देयर एंड गेट सम बेटर क्वेश्चंस टू आस्क, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्पेशल ओकेजन विच इज़ नॉट अबाउट what gift I'm carrying for him. बिल्कुल, ऑफ कोर्स होता है। एक्चुअली जो भी ब्रांड मैं इंडोर्स करता हूँ, वो ब्रांड मेरे परिवार की तरह एक बन जाता है। मैं उस ब्रांड का परिवार एक हिस्सा बन जाता हूँ। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कौन से ब्रांड को इंडोर्स करें, और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कहाँ और कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। ये जो कहावत है, जो शादीशुदा लोग हैं वो तो बिल्कुल कहते हैं कि हम खा के पछता रहे हैं, बट जो शादीशुदा नहीं है वो बिल्कुल उनकी बात नहीं मानते हैं। वो समझते हैं कि कोई झूठ बोल रहे हैं, और एक बहुत मज़े की बात है जो ये लोग हमारी बात नहीं, हमें नहीं चाहते हम मज़ा करें। बट द फैक्ट इज़ कि ये बहुत सिनिकल व्यू है। शादी एक अच्छी आई थिंक लाइफ लॉन्ग दोस्ती होती है किसी के साथ। उसको एक बंधन नहीं मानना चाहिए, उसको एक कंपेनियनशिप, एक दोस्ती माननी चाहिए। मैं तो मानती हूँ कि यंग एज में इतनी ज़रूरत नहीं होती उसकी जितनी एज यू ग्रो ओल्डर होती है। तब आपको बाकी चीज़ों से फुर्सत होती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, दैट्स व्हेन यू नीड अ कंपेनियन। सिद्धार्थ को तो सालों से टिप्स दे रहे हैं। सबसे पहली टिप तो ये थी उसकी कि शादी कर लो भाई, तो उसने एक पहली टिप तो मान ली है, एंड आई थिंक वो बिल्कुल तैयार था सेटल होने के लिए, एंड ही सो एक्साइटेड। बहुत एक एक्साइटेड दूल्हा है हमारा। सो आई एम श्योर ही मेक अ गुड हस्बैंड। अपनी बीवी को हंसाएगा, उसको बहुत खुश रखेगा। सो विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। बेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ मैरिज इज़ चिल्ड्रन, आई थिंक, एज वी ऑल नो, बट ऑल्सो आई थिंक इट शुड बी लॉट ऑफ हैप्पीनेस, कंपेनियनशिप, एक दूसरे के साथ बहुत मज़ेदार चीज़ें करो, अच्छा दोस्त ज़िंदगी भर के लिए मिल जाए। आई थिंक मालदीव्स बहुत रोमांटिक है। आपको बहुत ज़्यादा रश नहीं मिलती और आपकी बीवी सीधा शॉपिंग मॉल में नहीं घुस जाती। सो मालदीव्स बहुत अच्छी जगह है। यू कैन बी आइसोलेटेड, यू कैन बी रोमांटिक, एंजॉय योरसेल्फ। आप इनसे पूछिए। एक्चुअली बात बिल्कुल सही है। अभी हम पछता रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह पछता रहे हैं। हमारी शादी को भी वो 7 ईयर एज बोलते हैं, वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं सिद्धार्थ करण को ऑल द बेस्ट बोलने वाला हूँ, एंड वेलकम टू द फ्रेटर्निटी। तो आज उसको अच्छी से अपना फंक्शन होने दीजिए, और कल परसों जब हम फ़ोन पे बात करेंगे तो काफ़ी टिप्स। यही कि शादी का लड्डू अभी खा लिया है, अभी पछताएंगे या खुश रहेंगे। गॉड ब्लेस, आई एम श्योर दैट वो खुश ही रहेंगे। आई होप इज अ गुड कुक, बिकॉज हाँ, बीवी को भी अच्छा एक शेफ पति ज़रूर चाहिए। नहीं, सिद्धार्थ बहुत एक्सपर्ट आदमी है। इनफैक्ट उन्होंने हमारी शादी में बोला था, काफ़ी आइडियाज़ दिए थे। तो इन सब चीज़ों में सिद्धार्थ एक्सपर्ट है, और हम सिर्फ उनको बेस्ट विशेस देने चाहते हैं। I have brought, of course, a gift which you have seen, but what is inside only Siddharth can tell you. Just ask him. I'm a bachelor, I am single, and I am happy with that. So no marriage for me. So I still believe I'm the princess on the towel, you know, and I'm still waiting for my prince to rescue me. So let's see when it will happen. He should definitely love me, and that's my prescription.
He should be handsome, of course, but his heart should be pure, you know. That's the most important. You know, I came here because I'm really, really happy for Siddharth. I have done many events with him and I'm so glad that he got married, and I really wanted to wish him all the very, very best, and he will be a brilliant husband, I know that for sure. So I think this should be his honeymoon destination. He will definitely enjoy the country of God made of its own. So I think that's the choice number one. लास्ट टाइम वो काम कर रहे थे और इस बार ही इज़ एंजॉइंग हिज हॉलीडेज बिकॉज अब वो शो से बाहर है. सो ही इज जस्ट एंजॉइंग हिज फ्री टाइम. इज फिनिशिंग अ लॉट ऑफ पेंडिंग वर्क. नहीं बहुत सारा जो पेंडिंग वर्क था वो काम भी कर रहे हैं. वेल ऑब्वियसली इनिशियली मुझे बहुत धक्का लगा था, बट इट्स ओके. इट्स अ क्रिएटिव कॉल. It's a call by both of them. As an actor, even he thinks it's a right decision. So I respect him, whatever decision he makes. I think it's like can't live with and can't live without relation. That is what I would also define marriage as. Oh, I would tell him just take a flight and go to Maldives. I love Maldives. Vivian and me both want to go there again, in fact. And it's like the best place for honeymooners. Siddharth Kovel. Well, he's a very nice guy. मैं उसको बहुत सालों से जानती हूँ and he's very charming. So I don't think he needs the tips. वो अपनी वाइफ को बहुत खुश है. जी मुझे तो आज यही लग रहा है कि जो खाए वो पछता है. लेकिन आई विश सिद्धार्थ एंड नेहा ऑल द बेस्ट. और मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है सिद्धार्थ. रेडियो पर बहुत खिल्लियाँ उड़ाता है, लेकिन ही इज़ अ स्वीट हार्ट. ही इज़ एन एब्सोल्युटली अडोरेबल पर्सन और लवली. आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई विश नेहा ऑल द बेस्ट. हम यहाँ अनिल जी के साथ हैं, और अगर आप लोगों को शायद नहीं पता तो मैंने इनके साथ 24 में काम किया था. मैं आपको इतने सालों से सबको देखते आ रही हूँ. आई रियली लव यू ऑल कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं. एंड आई अडोर, मतलब हर जगह सोशल इवेंट्स पे आने का सबसे ज़्यादा मज़ा होता है आप सबसे मिलना, और आप लोग बहुत प्यार करते हैं. सो थैंक यू सो मच. और अभी मेरी फिल्म आ रही है हाईवे, उसमें मैंने रहमान सर के लिए गाना गाया, तो वो ज़रूर सुनिए. और आई होप यू ऑल इन्जॉय दैट. इस चीज़ के बारे में मुझे अभी तक, आई एम सॉरी, मुझे अभी तक पता नहीं है. बट अगर ऐसा कुछ है तो दुख की बात इसलिए है क्योंकि म्यूज़िक जो है, हम लोग तो इसी सोच से बड़े हुए हैं कि म्यूज़िक लोगों को जोड़ता है. और चाहे वो किसी भी देश का हो, म्यूज़िक एक इतनी पावरफुल मीडियम है कि आदमी अगर कोई बीमार है तो उसको भी हील कर दे. तो अगर आदमी रिलीजियस सेंटिमेंट्स की वजह से अगर म्यूज़िक को बीच में ला रहे हैं तो वो दुखद बात है. और आई थिंक म्यूज़िक को हमेशा जोड़ना ही चाहिए, उसका काम ही ये है. डेफिनेटली मेरे ख्याल से सबको खाना चाहिए, और हमने भी खाया है और अच्छा है, मधुर है और बड़ा मज़ेदार है. और मैं खुश हूँ शादी से. मैं लड़के वालों की तरफ, सिद्धार्थ मेरा पुराना दोस्त है. मैं खास मेरी स्टोरी सेटिंग छोड़ के मैं आया हूँ यहाँ पे ताकि मैं उनको बधाई दूँ, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ होती है मेरे ख्याल से हर इंसान को जो उसके वेल विशर है उनको आना चाहिए विश करने के लिए. बड़ा ही पावन, बड़ा ही एक शुद्ध रोमांस होता है. तो इसलिए मैं आया हूँ और मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा सिद्धार्थ और उनकी वाइफ. आप सिद्धार्थ करण को जानती नहीं है, मैं उसे कॉलेज के टाइम से जानता हूँ. उसको कोई टिप्स की ज़रूरत नहीं है. जितने टिप्स हमारे तौरानीस के पास नहीं, उससे ज़्यादा टिप्स इसके पास हैं. बड़ा प्रैक्टिस लड़का है. आई एम श्योर हर एक की अपनी पसंद होती है. सिद्धार्थ इज़ अ वंडरफुल गाय. कॉलेज के दिनों से जानता हूँ मैं उसे. बहुत सक्सेसफुल आरजे है. मैं सिर्फ उसे एक ही एडवाइस दूंगा कि जब अपनी, अब तो पत्नी हो गई, अपनी वाइफ से जब बात करेंगे तो अपनी आरजे वाली आवाज़ में बात ना करें और नॉर्मल बात करें. बस इतनी एडवाइस दूंगा. जब वो आई लव यू कहे तो आई लव यू ऐसे नहीं कहे, सिंपल कहे.
Today we're here for a really special occasion. Sid and his family are very close family friends. We all grew up together in Kolkata, and I wish Sid and his future family all the best in life. And it's just going to be a wonderful evening to them. Looking forward to it. I think that when two people come in unity to start a family, it's a really beautiful thing. And to be here supporting one of my childhood friends, Siddharth, and his whole family, Mr. and Mrs. Kannan, is an honor for me. I'm really looking forward to going in there and having a good time. So you guys enjoy your evening. शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मुझे लगता है कि शेर को सवा शेर मिला है। जितनी बातें सिद्धार्थ कन्नन करते हैं आज से मुझे लगता है कुछ तो कम ज़रूर होंगी और घर में तो बिल्कुल बंद हो जाएंगी। नो आई एम सेइंग कि मतलब जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि बीवी के साथ खड़े हुए आप पूछ रहे हैं कि आप लड्डू खा के पछता रहे हैं, दुनिया में कोई ऐसा पति नहीं होगा कि इस सवाल का जवाब बीवी की मौजूदगी में दे सके, तो मैं भी नहीं दे सकता। मुझे यकीन है कि सिद्धार्थ पूरी रिसर्च ऑलरेडी कर चुका होगा, उसको पूरा स्कैन कर चुका होगा। नोइंग सिद्धार्थ आई नो वो ऑलरेडी 4 डेस्टिनेशन का चॉइस तो दे चुका होगा बीवी को, और मेरे ख्याल से एक हनीमून में उसका काम भी नहीं होगा, 4 हनीमून तो करेगा ही। पति इतने बेचारे होते हैं कि वो टिप्स दे ही नहीं पाते हैं, और अगर कोई टिप्स देने होंगे तो वो खैर वो मेरे ख्याल से बॉयज़ मीट में होगा, जो आई डोंट थिंक सो वी कैन शेयर राइट नाउ आउट हियर। मैं तो कह रहा हूँ जब सिद्धार्थ कन्नन भी शादी करने के लिए तैयार हो गया तो नहीं, मतलब अब तो हर कोई शादी करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सिद्धार्थ इज ऑलमोस्ट लाइक द फॉरएवर बैचलर, लेकिन ऑफ कोर्स अच्छे वक्त में कर रहा है शादी, और डिले करता तो पता नहीं कब होती उसकी शादी। लेकिन बहुत प्यारा मेरा पुराना दोस्त है, मेरे इनफैक्ट ऋषि मेरा दोस्त है, सिद्धार्थ इज हिज किड ब्रदर, तो बहुत खुशी हुई है कि सिद्धार्थ की शादी में आ रहा हूँ। सिद्धार्थ को कोई ऐसी जगह जानी चाहिए जहाँ बहुत साइलेंस हो, कि वो अपनी कुछ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहे तो लोग मतलब अपसेट हो जाए ऐसा। सिद्धार्थ की बीवी को उनको बोलना चाहिए कि जो आपका है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा ही है। नहीं, एज एन आर्टिस्ट, एज अ फेलो परफॉर्मर, हम अगर इस तरह का प्रतिक्रिया दिया है तो ये गलत होगा, क्योंकि म्यूज़िक में कहें या कला में कहें तो उसमें कोई अलग देश या कोई अलग नहीं होता, हम सब एक ही होते हैं। जो अच्छा है वो अच्छा है बस, और हम ज़रूर उन्हें सपोर्ट ही करेंगे। लेकिन ये अलग बात है कि जब पॉलिटिकल बात हो जाती है तो चूँकि हमें कभी वहाँ जाने का उस तरह का मौका नहीं मिलता, ना ही इंडियंस को वीज़ा मिलता है पाकिस्तान की, और यहाँ उतने आसानी से उन्हें वीज़ा मिल जाता है, तो शायद इस वजह से, नॉट बिकॉज दे आर म्यूजिशियंस और बिकॉज दे आर, आई थिंक उनकी इशू अलग होगी, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट। बिल्कुल इट्स अ पॉलिटिकल प्रोटोकॉल और उस तरह से उन्होंने किया होगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं कि वो कलाकार है, इसलिए क्योंकि शायद उनके पास वैलिड वीज़ा या पता नहीं वैलिड पासपोर्ट नहीं होगा, इस तरह से कुछ होगा। मुझे एक्चुअली इतना जानकार नहीं है इसके बारे में, और टची टॉपिक है, ना ही बोलूँ तो बेटर है। लेकिन आई मीन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान के हैं, और हम दुबई में मिले हैं या जहाँ भी मिलते हैं बहुत खुशी से मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। साथ में शोज़ भी किए हैं, चाहे आतिफ असलम हो, चाहे बहुत सारे उनके जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ प्रोग्राम्स किए हैं। रात भाई के साथ भी बहुत बार प्रोग्राम्स किए। Yes, Siddharth is a very close friend of mine, और मैं उन्हें ऑब्वियसली कंग्रेचुलेशन बोलने आई हूँ। आई एम सो हैप्पी इज़ गेटिंग मैरिड, और मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी जब मुझे नेहा का फेस दिखे। आई वांट टू सी हू इज ही फाइनली गेटिंग मैरिड टू। आप यानी लड़के वालों की साइड से? लड़के, यस ऑफ कोर्स। यू नो हनीमून इज़ अ वेरी डेलिकेट टॉपिक विद मी। हनीमून मेरे साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं और बख्तियार हनीमून के लिए नहीं गए हैं, और अगर मुझे पूछो तो दे शुड गो टू ओनली पैरिस, क्योंकि ये मेरा हनीमून डेस्टिनेशन है। एकदम फाइन है। अभी तो यार सिद्धार्थ की शादी उसकी बात करें, आई वुड टोटली एग्री। आई थिंक किसी ने जो सोच समझ के कहावत बनाई है एकदम सही बनाई है। ये लड्डू ऐसा कि सबको खाना भी है और जो भी खाता है उसे पसंद आता है, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पार्ट ऑफ सी द मैरिड लाइफ। आई थिंक सही है, यू नो। आई थिंक ऑल द मैरिड पीपल ऑलवेज रिग्रेट कि यार शायद मैं बैचलर होता और बढ़िया था, और सारे बैचलर्स ये चाहते हैं कि यार मेरी शादी हो जाए अच्छे। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आई थिंक हमेशा यार बहुत सालों से मैं सिद्धार्थ को जानता हूँ, रियली सीन ग्रो सो वेल इन लाइफ, एंड
today I'm here to wish him and have a great life ahead. I think सुरक्षा है ना, भगवान है सुरक्षा करने के लिए अपने आप, वही ध्यान रखता है सब कुछ. I think everything is fine. दुर्घटनाएं होती रहती हैं, but I think that's a part of life. जब तक सही सलामत आपके सामने खड़े हैं तो why not? Welcome to Masala Buzz. We bring to you the latest happenings from the world of showbiz. Today's top stories are: Sonam Kapoor is more popular in smaller towns. Nana Patekar threatened to walk out after a heated argument with Feroz Nadiadwala. Sonakshi Sinha said that she won't be at ease being seen in a bikini. Sonam Kapoor is in demand. The actor has had 2 hit films back-to-back, Bhag Milkha Bhag and Ranjana. Although the actor's performances in both the films were not lauded much, as she did not have much to do in either of them. In spite of this, surprisingly, the actor is very popular in smaller towns. She has been getting offers to appear on various occasions at Varanasi, where she shot Ranjana. दुनिया थूकेगी मुझ पे कुंदन, अगर प्यार कर लिया तुझसे. पर देख, प्यार कर ही लिया ना. The actor is elated on getting such offers and is happy to see that she is popular amongst the locals. She has been shooting for her next film across Rajasthan, and that gives her ample time to go to the holy township of Varanasi and perform at various occasions. It is good to hear that the actor's fans love her so much. We would love her even more if she does some considerable roles in movies. We surely do want to see more of her, and even her fans have been waiting to see the actress in a fully fledged role. Nana Patekar lost his cool, but this time it wasn't on screen. The welcome actor, who is reprising the role of Don Uday Shetty, had a verbal spat with Feroz Nadiadwala on the sets of Welcome Back. The fight happened right in front of the rest of the cast, including Shruti Hassan, Anil Kapoor and director Anis Bazmi. It is said that the reason was a lot of unprofessional behavior from Feroz Nadiadwala. Apparently, the team had flown to Dubai to shoot major chunks of the film, but many shoots were cancelled because of unavailability of locations. The blockbuster actor urged the makers to not waste the actors' dates, and one thing led to another, starting a heated argument between the two. Nana's frayed tempers went out of control and he threatened to walk out of the film. Eventually, Anil and Anis jumped in and stopped the war of words between the two. We think it was a genuine gesture from Anil and Anis, as both of them have not had a movie released since long. Had Nana walked out of this project then, maybe Welcome Back would have got shelved. Sonakshi Sinha said that she has to face her parents, and despite being edgy and experimental sometimes, she won't cross the line of comfort. Elle Official India magazine reported. She also opened up about the intimate scene with her co-star Ranveer Singh, saying that director Vikramaditya Motwane had come to her with the script, which had a full-fledged kissing scene, which she told him that she wouldn't be able to carry that on screen. She said that Motwane really wanted her to be a part of the film, so he accommodated her demand and replaced the kissing scene with an aesthetically shot intimate scene. It is very well-known fact that Sonakshi is one actress in Bollywood who has always stood by her words and never worn anything too skimpy or done extreme love-making scenes. And we are glad to see that she has yet gone very ahead in her. I'm here. Wait.
मैं सबको one last. It's pasted. You know, when people ask me what genre of the film it is, I don't know how to answer that because it is in between genres. So it's neither this or that. Not outrageously funny. I don't know what it is, but yeah, I think it's a continuation of the kind of films that I have been making. देखिए इसका मुझे जहाँ तक जितना हमने फिल्म को एक्सपीरियंस किया है मुझे लगता है इसका जो टाइटल है आंखों देखी मुझे लगता है ये सच में सार्थक है अगर आप जाएंगे और देखेंगे तभी आप ये वास्तविकता और हकीकत के बीच में फर्क पैदा कर पाएंगे ऐसे बताने में एक्सपीरियंस नहीं ले सकते पर इसका अनुभव तभी होगा जब आप सच में आंखों देखी देखेंगे Or you will see the film will not be the same as somebody else's experience of it. I don't think films should be made with that idea. I think that's a secondary thing. What a film does at the box office is a secondary thing. You don't start making, at least I don't start making a film with the idea of what numbers you will collect. I'm very grateful that I'm allowed to make any films at all. So what happens with the box office is really not the primary concern. The primary concern is that you make a film that you believe in. Rest everything else is a bonus. If it does well, I'll be very happy. I'll also be happy because it'll allow me to make my next film and the next. See, it's not true because except for Ranveer Shori, who I admit has been repeated in 3 of my films, every other time I've worked with Konkana, I've worked with Koel Puri, I've worked with Maria Goretti, I've worked with Sadia Siddiqui, I've worked with Neha, I've worked with Bolu, and now I've worked with Seema and Taranjit and Maya. Only Ranveer Shori is the exception who you keep beating me up with. I'm sorry, but I like him. It's also because he's a wonderful actor, and then somehow the roles that he was playing, he could fit into each one of them. It's not because he's a friend of mine or we are a gang or anything. You can call it that. देखिए 55 साल के आदमी को आप बुजुर्ग बुलाते हैं ये मेरे को पसंद नहीं है बात 55 साल इस बुजुर्ग then you can call it that. देखिए बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार है जिनमें पैसे की किल्लत रहती है रोजाना खर्चे की किल्लत रहती है और उस परिवार के कर्ता जो हैं ये संजय मिश्रा जी हैं बाबूजी और एक दिन उनको एक कीड़ा उनके दिमाग में घुस जाता है और वो कीड़े की वजह से कहाँ उनका सफर शुरू होता है कहाँ तक पहुँचते हैं वो कहानी है वो किरदार है वो ऐसा किरदार है जो किसी भी बात को मानने से इनकार कर देता है और उसकी वजह से उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ता है और उनके आसपास जो लोग हैं उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ता है ये कहानी फिल्म मेरा ये मानना है कि फिल्म का या किसी किताब का या किसी कहानी का एक मैसेज नहीं होता है आई थिंक इफ इट हैज ओनली वन मैसेज देन इट्स अ बैड बुक और अ बैड फिल्म सो व्हाट वी कीप लुकिंग फॉर अ मैसेज आई थिंक इट्स अ रॉन्ग थिंग टू लुक फॉर इन अ फिल्म और अ प्ले और अ बुक you look at a painting, you don't say what is the message of this painting. No, you just enjoy that painting. You know, or you listen to music, you don't say what is the message of this music. You like that piece or you don't like that piece, right? But it affects you experientially, it affects you emotionally, and that's how it teaches you many things. तो वो message जो है उसका वहाँ छुपा होता है, but not in a thing that I want to say. That is not a message. You know, message is not कि आप सब देशभक्त हो जाइए. That is a bad message. इस फिल्म में कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसी, क्योंकि ये किरदार मेरा बहुत जाना हुआ था मुझे कोई परेशानी नहीं मनु ऋषि देखिए दो बेहतरीन एक्टर्स विजेंद्र काला मनु ऋषि चड्ढा जो भी इस फिल्म के पार्ट हैं क्योंकि काफ़ी बड़े स्टार्स हैं हमारी फिल्म में कम से कम इस गाने से लोगों को वो एरा याद आएगा तो और कोई थोड़ा इमेजिन करेंगे
और थोड़ा फील फैक्टर बढ़ाने के लिए हम ले आए। सागर के बिहार में मैं बोलूँ कैसे बता एक्टिंग की बात करें या कि promotion. See, that's always a problem because we don't have big stars. So promotion, how do you get your film registered in the mind of an audience? How do they even know that such and such film is coming out? I don't know. I'm a novice at that. Epigram, which is a marketing company, and Spice, which is a PR company, are helping us do that. Hopefully, they know what they're doing. If they do, then I think we'll get some numbers. Also, I think poster becomes a very big thing for films like this. The trailer becomes a big thing because that is either attractive or not. You know? So you make a first impression with that. But you know, you can only follow your instinct, and you don't know if it's going to land on its feet or not. यार इसके अंदर ना एक ऐसे शख्स की कहानी है, एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी है जिसको अचानक एक सच मिलता है और उस सच के पीछे पीछे वो चलने लगता है, क्योंकि सच इतना खूबसूरत है लेकिन आम इंसान उसे समझता नहीं है, तो शायद बहुत ही उत्सुकता बढ़ाता है वो आसपास के लोगों में। और एक मंडली सी फॉर्म होती है जिसमें मैं और ब्रिजेंद्र काला हम दोनों मंडली का एक हिस्सा है, और मंडली के उस हिस्से में हमारे पास बहुत से सवाल हैं क्योंकि वो सच को हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो हम भी क्लियर होते हैं इस चीज़ से जो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है फिल्म के अंदर। तो हम एक मंडली में एक ग्रुप में हैं जो संजय मिश्रा के आसपास हैं, करीब है। हाँ, एक तो क्या कि मैं मतलब रिश्ते में इनका बहनों ही बनाऊँ मिश्रा जी का, तो हमें पता लगता है कि अचानक इनके जीवन में एक अलग सा आलाप चल रहा है, ये सच की तलाश में निकल चुके हैं, है ना। और मंडली के साथ बैठ कर के इनका पूरा का पूरा जिसे कहते हैं कॉकस एकदम पूरे फंस जाते हैं उसमें, ये मंडली को फंसा लेते हैं, मंडली इनको फंसा लेती है, इस तरह का जो चल रहा है। और घर में किस तरह से मतलब क्यों मचा हुआ है इनकी हरकतों की वजह से, तो बस उसका एक पार्ट है। तो उसमें जैसे जैसे बातें उलझती जाती हैं तो उसको सुलझाने के चक्कर में क्या क्या आप फन पॉइंट ढूंढ सकते हैं, उसकी कोशिश हम लोगों ने की। You can call it comedy also. See, for like audience who really feel like watching a film जहाँ हंसना हो, ठीक है, कॉमेडी के भी स्टेजेस होते हैं ना, तो जहाँ हंसना हो तो आई थिंक इट्स कॉमेडी ऑल्सो, लेकिन ये बहुत ही इमोशनल सच बताता है एक आदमी के अंदर का जो हम सब जानते हैं, लेकिन खूबसूरत तरीके से 1 घंटा 40-42 मिनट में आपके सामने रखा जाएगा। एक ऐसा सच है जो हम सब, बस एक आंखों देखी फिल्म का नाम है, और हम आंखों देखी पर यकीन करते हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन क्या हम सच में आंखों देखी पर यकीन करते हैं, ये नहीं बताया। तो इस फिल्म के ज़रिए कई सवाल निकल के आएंगे और वो आप उन सवालों के साथ जुड़ते चले जाओगे। तो ये कॉमेडी है, हल्की फुल्की तरीके से हंसाने की कोशिश करते हुए ही इस फिल्म को बेहतर ढंग से समझाया भी गया। So I don't mind one-on-one, that can be interesting, but आपने देखी कहानी है बाबूजी की। बाबूजी एक मध्यम वर्गीय परिवार के हिस्सा हैं दिल्ली में, सारी शूटिंग फिल्म की दिल्ली में हुई है, और बाबूजी को एक दिन कीड़ा आ जाता है कि जिस चीज़ को मैं देखूंगा नहीं उस पर मैं विश्वास कैसे कर लूँ। तो फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि पृथ्वी गोल है, अब मैं कैसे मान लूँ कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि मुझे तो लग रही है सपाट, लेकिन आप कह रहे हैं गोल, तो मेरा क्या मानना रहे कि गोल है कि सपाट है, या ये कि इट डजंट मैटर टू मी, क्योंकि सपाट हो या गोल हो यार मैं तो ठीक से चल ही रहा हूँ ना, सो इट डजंट मैटर। सो ऐसा कुछ बाबूजी के दिमाग में बात बैठ जाती है और वो उसको बहुत ही दूर तक ले जाते हैं इस बात में, और उनके इस दूर के सफ़र में उनका जो परिवार है उस पर क्या गुजरती है कहानी वो है। देखिए एक हाँ मैं बताता हूँ कि ये आइडिया मेरे पास काफ़ी सालों से है, 7-8 सालों से, क्योंकि सवाल आपको, मुझे लगता है हर किसी को ये सवाल कभी ना कभी दिमाग में उभरता होगा कि यार क्या आपसे कहा गया कि यार वो बड़ा ख़राब आदमी है ना, लेकिन आप उसको जाके मिलते हैं, आप कहते हैं आगे बड़ा अच्छा आदमी है, तो मैं किसका विश्वास करूँ कि जो लोग सब मुझे बता रहे हैं उसका, या जो मैंने अपना अनुभव किया उसका। तो ऐसे ही एक केस से ये ख्याल मेरे को आया कि ये अच्छा आइडिया है फिल्म का, और ये मेरा भी मानना है कि मैं भी कुछ इस तरह का हूँ कि अपने ही अनुभव से यकीन करना चाहता हूँ, दूसरे जो कहें उस पर यकीन नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे कोई कतई रुचि नहीं है उस तरह की फिल्म में, उस तरह की फिल्म बनाने में। मैं फिल्म बना रहा हूँ क्योंकि मुझे एक तरह की फिल्म बनानी है, मुझे पैसे बनाने नहीं है। अगर मुझे पैसे बनाने होते तो मैं कोई और काम धंधा करता। मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ फिल्म बनाने के लिए आया था, और वो फिल्म वही बनाऊँगा जिसमें मेरा विश्वास हो, जिसमें मेरी रुचि हो,
और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक फिल्म बनाने में आपकी ज़िंदगी के 2 साल जाते हैं, तो आप 2 साल ऐसा काम करें जिसमें आपकी रुचि नहीं है, आई थिंक दैट इज़ नॉट फॉर मी। इस फिल्म की खास बात क्या है, आई डोंट नो, आई थिंक एक तो खास बात ये है कि एक देसी फिल्म है बहुत ही, जैसा कि मैं कह रहा था कि इस तरह की फिल्में आजकल नहीं बनती। एक मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में बहुत ही उनका सच और बहुत ही घरेलू फिल्म है, एक परिवार की फिल्म है। जैसे आप लोगों को पता नहीं 2 रास्ते फिल्म थी 70s में आई थी, या बागबान कुछ साल पहले आई थी। इस तरह की फिल्में आजकल नहीं बनती। जॉइंट फैमिली के बारे में ये फिल्म, जॉइंट फैमिली इस फिल्म का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो ऐसी शायद वो बात यूनिक है। और दूसरा बाबूजी का जो सफ़र है वो तो यूनिक है ही। लेकिन हमारी प्रोडक्शन डिज़ाइनर मीनल अग्रवाल, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, और आफिर महमूद जिन्होंने फिल्म की लाइटिंग और कैमरा किया, ये सारा श्रेय उनको जाता है। उम्मीद रखना बहुत अजीब बात है, क्योंकि क्या मैं उम्मीद रखूँ इस फिल्म से। ये उम्मीद की बहुत बड़ी हिट हो जाएगी, ये उम्मीद के कुछ लोग देखने आएंगे, कुछ भी मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है। मैं खाली ये उम्मीद करता हूँ कि जो बनाए कुछ लोगों को पसंद आ जाए, बहुत लोगों को पसंद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को तो पसंद आए यार यही उम्मीद है हमारी। ऐसा हो सकता है, लेकिन बड़े सितारे होने के बावजूद भी फिल्म पानी में डाल सकती है, ऐसा भी होता है। तो फिर इसलिए तो कोई काम नहीं करेगा कि, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपके यकीन पे, आपके विश्वास पे ही आपको काम करना चाहिए। आई मेक व्हाट आई बिलीव इन एंड आई लिव बाय दैट बिलीव। आई एम नॉट गोइंग टू रन अवे फ्रॉम दैट just because I need promotion or no. This is a film that I believe in completely, and I'm going to live by it. Making a film is a very difficult part, because first you have to write a script, then you have to look for money, then you have to make the damn film. That takes 2.5 to 3 years. Promotion is difficult, but it's not so long. But if you look at release has become a little difficult now, because you need money to release the film also.